account, society's account, then government department's account. See, basic things which are required. Okay, so that is the basically when we talk about the KYC. So now I suppose with this your concept is clear. Okay, entity, individual. Okay, ऑब्वियसली फोटोग्राफ किसका चाहिए होगा? इंडिविजुअल का, एंटिटी का नहीं होगा फोटोग्राफ. एड्रेस प्रूफ दोनों की चाहिए होंगे. सपोज कंपनी है, उसका डायरेक्टर है, तो उनका आईडी प्रूफ. और सपोज वो कंपनी जहां पर एग्जिस्ट करती है, कंपनी का एड्रेस प्रूफ. ठीक है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन उसका आईडी हो जाएगा. और डायरेक्टर का आईडी क्या हो जाएगा? उसका पैन, उसका पासपोर्ट, उसका आधार, ऑल दैट. सो रिमेंबर दीज 3-4 थिंग्स फॉर केवाईसी. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, रिस्ट बहुत सारे फॉर्म्स आते हैं, वो विल सी. वो अलग अलग आते हैं. लाइक किसी में बाय लॉज लगता है, किसी में बोर्ड रेजोल्यूशन लगता है, किसी में पार्टनरशिप डीड लगती है, किसी में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन लगता है, किसी में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन लगता है. ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. सो नाउ लेट्स कंटिन्यू आवर जर्नी. एंड दिस इज the third video we are watching on type of the customers. Okay, so here we go. I hope we all are ready. So we'll chat also during this the video, and after that if you have any queries we'll discuss in a live class. Okay, so here we go. So now first of all we'll see the differences between limited companies. As you all know that there are two types of the companies. One is private limited and another is public limited. Okay, so we'll see कि public limited क्या है, private limited क्या है, what articles all are required. Okay, so we'll see all that. So first of all, see, ये differences ही ना इनके features हो जाएंगे. But I hope for most of you who are having 12th as in commerce background, they already know about these differences. Although if you're not from that background also, it doesn't make any difference because we'll study this topic from the very scratch. Okay, so public limited or private limited. So see, so what's the meaning of public limited? Obviously public limited is which is owned and traded publicly. Public नाम से पता चल रहा है. प्राइवेट इज ओन्ड एंड ट्रेडेड प्राइवेटली, सो दैट इज प्राइवेट लिमिटेड. सो नाउ व्हाट इज द मिनिमम मेंबर्स व्हिच इज रिक्वायर्ड इन पब्लिक? द मिनिमम मेंबर्स की जो संख्या है दैट इज 7. ओके, अब प्राइवेट में जो मिनिमम मेंबर्स की संख्या है दैट इज 2 मिनिमम. मैक्सिमम नंबर्स जो है, ओके, मैक्सिमम जो मेंबर्स हैं पब्लिक लिमिटेड में वो अनलिमिटेड होते हैं और प्राइवेट में इट इज 200. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. सो वंस अगेन, which is owned publicly is public, which is owned privately or traded privately is private. Minimum in case of public is 7 and maximum is unlimited. Private में minimum is 2 and the maximum is 200. I hope this is clear to you. Okay, आगे चलें. So now some more differences we'll talk. See, first we're talking about the public limited or then we'll talk about the private limited. So minimum directors public limited में कितने होते हैं? 3 होते हैं और private limited में 2 होते हैं. Okay, we are talking about here the number of directors. Suffix पब्लिक लिमिटेड हमेशा लिमिटेड लगता है या फिर पब्लिक लिमिटेड भी कह दिया जाता है. ठीक है, मेजरली इट्स लिमिटेड. प्राइवेट लिमिटेड कभी भी लिमिटेड नहीं होगा. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बाद हमेशा ऐसा लगेगा प्राइवेट लिमिटेड. ओके, सो दैट इज सफिक्स. सो व्हेन दे कैन स्टार्ट देयर बिजनेस, मतलब बिजनेस की स्टार्टिंग कब होगी? पब्लिक लिमिटेड के केस में जब उनका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट दोनों आ जाएगा तो उनकी स्टार्टिंग हो जाएगी. ओके, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट, वो जब दोनों आ जाएगा तो उनकी स्टार्टिंग हो जाएगी. और प्राइवेट लिमिटेड में उनको केवल सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन चाहिए होता है. सी,
Again, this topic you'll just have to do the overview, the KYC. You don't have to go in the details like what is COI, what is COC. You should know that basically what is this. Incorporation is required at the time of incorporating, and commencement is when the business is started. Okay. अब prospectus की बात करते हैं. Able to understand the difference on the basis of minimum directors, 3, 2, suffix, limited, प्राइवेट लिमिटेड, स्टार्टअप बिजनेस, पब्लिक के केस में सीओआई और सीओसी दोनों चाहिए और प्राइवेट के केस में सीओआई से चलेगा. ओके. प्रोस्पेक्टस पब्लिक में ऑब्लिगेटरी है और प्राइवेट में नहीं चाहिए. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. ओके, चले आगे. द नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन अगेन अ लिमिटेड कंपनी. ओके, सो नाउ पब्लिक की बात करते हैं और फिर प्राइवेट की. पब्लिक सब्सक्रिप्शन, ऑब्वियसली पब्लिक लिमिटेड में पब्लिक सब्सक्रिप्शन जो है वो अलाउड है. ओके, इट इज अलाउड एज द नेम सजेस्ट पब्लिक. और प्राइवेट में पब्लिक सब्सक्रिप्शन इज नॉट अलाउड. जो क्वोरम है, जो एनुअल जर्नल जो मीटिंग होती है उसमें कितना क्वोरम होना चाहिए, मतलब कितने लोग होने चाहिए. पब्लिक में बोलते हैं कि 5 मेंबर्स चाहिए ही चाहिए, प्रेजेंटेड पर्सन, अगर आप एनुअल जर्नल अगर आप मीटिंग कर रहे हैं. ठीक है. और प्राइवेट के केस में 2 मेंबर्स से भी इट्स ओके. पब्लिक के केस के अंदर अगर आप ट्रांसफर करते हैं शेयर्स तो वो फ्रीली ट्रांसफरेबल है. ठीक है. और प्राइवेट के केस में वो रिस्ट्रिक्टेड है. सो आई होप आपको नाउ यू आर एबल टू नो अबाउट द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट. हमने किस किस पे इस बात की, होता क्या है, मिनिमम मेंबर्स कितने हैं, मैक्सिमम मेंबर्स कितने हैं, डायरेक्टर्स कितने हैं, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स. ठीक है. और देन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट क्या चाहिए किसमें, देन पब्लिक सब्सक्रिप्शन किसमें है, एजीएम में कितने मेंबर्स चाहिए. सो अभी तक हमने देखा कि लिमिटेड कंपनीज के बीच में डिफरेंसेस. ओके, सो आई होप दिस इज clear to you. The next, now I have certain questions to ask you. I hope you remember. See, all these, there's a lot of the things we have already discussed in our type of customers topic. So now tell me, or in the chat box, please write what are the documents you require for the minor. Okay? I am asking certain questions. Okay? And you'll have to write on the chat box. The first question is documents for minor. This we have discussed, right? जितने भी questions पूछ रही हूँ, you need to answer this. I'm checking the chat box so that you know it's a sort of a revision also. So this is a new tactic I have just मैंने आजमाई. I've just used this in this video. So make such type of interaction. So come on, kids. I'll tell you the questions. You just start writing and then we'll discuss also. Or meanwhile, then I'll give you a report. Okay. My next question is, what is the KYC for partnership? Okay. And my last question is, what's the KYC for a joint account? Okay. याद है मैंने चलिए minor से start करते हैं. Now, what are the documents required for minor? As I have told you, that suppose I want to open my daughter's account. What is all required? Her birth certificate, obviously, जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से जो इशू होता है, ऑब्वियसली उसका आईडी एड्रेस. इसमें गार्जियन कौन है, इसमें गार्डियन मैं हूं तो मेरा आईडी एड्रेस लगेगा. ठीक है. रिलेशनशिप तो आ ही जाता है बर्थ सर्टिफिकेट पर क्योंकि मदर का नाम आता है. ठीक है. रीसेंट कलर फोटोग्राफ मेरी और देन सिग्नेचर्स मेरे आएंगे. और जब वो मेजर हो जाएगी तो अकाउंट को हम लोग माइनर टू मेजर कन्वर्ट कर देते हैं. और हमने बात भी की थी कि मेजर कब होते हैं, नेचुरल गार्डन के केस के अंदर. ठीक है. 18 पर.
और लीगल अगर कोर्ट करता है तो 21 पे, ठीक है। सो आई होप डॉक्यूमेंट्स ऑफ माइनर इज क्लियर टू यू। और हमने बहुत सारी चीजें भी पढ़ी थी कि माइनर के साथ अगर आप कोई एग्रीमेंट करते हो तो वो वॉइड है। अगर आपने उसे ओडी दे दी, कोई लोन दे दिया गलती से, वो अगर बाद डेथ हो गया, देन आपका उस पर कोई मतलब वसूलने का हक नहीं बनता। पार्टनरशिप में अगर आपने पार्टनर बना दिया तो इट्स ओके, लेकिन अगर लॉस हो जाता है तो माइनर इज नॉट responsible for that loss. So this we have already studied. It's just a recap. Okay. Next beta. So now partnership. Partner. Minimum कितने? Come on, tell me. Heads कितने? 2. Obviously एक जना तो sole proprietor हो गया, अकेला. तो अकेले stands from a partnership. 2 and more. Okay. Then KYC. What is all required? देखिए दोबारा से पार्टनरशिप क्या है? सपोज एबीसी लिमिटेड की एक मतलब एक पार्टनरशिप एबीसी पार्टनरशिप फर्म है जिसमें एबीसी पार्टनर्स हैं। तो ऑब्वियसली ए की, बी की और सी की केवाईसी लगेगी, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, ओके, एंड देयर फोटोग्राफ। और जो फर्म होगी उनकी पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, उसका आईडी हो जाएगा। सी देयर आर लॉट ऑफ सर्टिफिकेट्स, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसके लिए द बेस्ट पार्ट इज गो टू द आरबीआई वेबसाइट और वहां पर यू विल गेट द लेटेस्ट सर्कुलर ऑफ केवाईसी, ठीक है। सो आपको पार्टनरशिप फॉर्म का वहां से यू विल आल्सो गेट द डॉक्यूमेंट्स। फॉर्म का आपको एड्रेस प्रूफ क्या मिलेगा? फॉर्म जहां पर रजिस्टर्ड है वहां पर कोई बिजली का पानी का बिल आता होगा, वहां लेटेस्ट 3 महीने का, ओके। सो नाउ द केवाईसी फॉर अ जॉइंट अकाउंट। जॉइंट अकाउंट में भी हमने बहुत सारे क्लॉजेस पढ़े थे, लाइक ईदर और सर्वाइवर, फॉर्मर और सर्वाइवर, एनी और सर्वाइवर। याद है हमने वो केस पढ़ा था। ऑब्वियसली जॉइंट अकाउंट्स में हमने क्या बोला था, अगर आप पावर ऑफ अटॉर्नी किसी को बनाते हैं तो सारे होल्डर्स के सिग्नेचर्स चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ एमओपी, ओके। लेकिन जैसे कुछ मान लीजिए कहीं जगह मैंने कहा था सी बैंकर एक ऐसा प्राणी है जो इंट्यूटिव भी होना चाहिए बेटा। इंट्यूटिव होना चाहिए मतलब अपना आपको सेल्फ जजमेंट लेना आना चाहिए। मैंने आपको एक बताया था केस, जॉइंट अकाउंट होल्डर है, फादर, मदर, चाइल्ड का सपोज एक्सीडेंट हो जाता है, फादर इज आउटसाइड, एमओपी है जॉइंटली, मदर आती है आपके पास, वो बोलती हैं कि मेरा जो बेटा है ही स्ट्रगलिंग फॉर लाइफ, सो आई रिक्वायर मनी बिकॉज मेरे को उसका इमीडिएट ऑपरेशन कराना है। सो नाउ ऑब्वियसली द डिसीजन लाइज ऑन बेटा एज पर बैंकिंग रूल्स। तो नहीं लग रहा है बिकॉज बहुत सारी चीजें होती हैं। आई होप हम लोग केवाईसी और मनी लॉन्ड्रिंग पढ़ चुके हैं, सीडीडी जस्ट यू नो यस सर्टिफिकेट ऑफ। 2 मिनट रुको, पुराना इज अ रिवीजन, सो जस्ट अ सेकेंड। कि आपने एक के साइन से कैसे विड्रॉ कर दिया पैसा, माइट बी। जितेंद्र यू हैव रेज योर हैंड बेटा। जितेंद्र यस मैम, मैं बोला था मैम केवाईसी में ज्वाइंट अकाउंट में मैम सारा चीज तो सेम चाहिए ना, एड्रेस प्रूफ चाहिए चाहे मैम, तो ज्वाइंट मतलब। जितेंद्र केवाईसी में हमेशा याद रखना बेटा, रीसेंट कलर फोटोग्राफ, अकाउंट ओपनिंग पे सबके सिग्नेचर्स, ठीक है, जॉइंट में भी सबके सिग्नेचर्स, दोनों का आईडी और दोनों का एड्रेस। मैम बोला था मैम सेम होना चाहिए ही ना। सेम मतलब दोनों का ड्राइविंग, दोनों का वोटर ऐसे नहीं मैम, जैसे सभी का मतलब दोनों का एड्रेस प्रूफ चाहिए, इस तरह का होगा ना। हाँ। दोनों का एड्रेस प्रूफ, दोनों का कलर फोटो मैचिंग वाला वो होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ तो दोनों सेम ही होना चाहिए। नहीं जरूरी नहीं है सेम हो जितेंद्र। तो मैम See, I'm telling you, ये भी हो सकता है ना किसी का कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस में थोड़ा सा डिफरेंस हो, समटाइम्स दिस हैपन, ठीक है। सो दोनों का एड्रेस मोस्टली 99% इट्स सेम, राइट, बिकॉज मान लीजिए हस्बैंड वाइफ हैज ओपन द अकाउंट, सो ऑब्वियसली देयर, बट हो सकता है वाइफ का पहले का हो अपने मदर के पक्ष का, राइट, देन ऑब्वियसली जो हस्बैंड का होगा वो जो एड्रेस होगा उससे ओपन हो जाएगा और उसी को कम्युनिकेशन एड्रेस कहेंगे, राइट जितेंद्र? यस मैम। और केवाईसी पार्टनरशिप में सेम होना चाहिए।
पार्टनरशिप में नहीं, पार्टनर्स को सेम घर में थोड़ी रहेंगे, उनका तो आईडी एड्रेस प्रूफ सबके अलग अलग हो सकते हैं ना, सब अलग अलग। मैं और आप पार्टनर बन सकते हैं ना जितेंद्र, आपका एड्रेस कुछ और है, मेरा कुछ और है, लेकिन हाँ एंटिटी का तो एक ही होगा। यस मैम। राइट जितेंद्र? ये ओके मैम। यस मैम। मैम जैसे केवाईसी के लिए पार्टनरशिप में अकाउंट है तो मैम एक भी डॉक्यूमेंट देकर केवाईसी हो सकता है या दोनों पार्टनर का डॉक्यूमेंट देकर केवाईसी करना पड़ेगा? दोबारा से बोलोगे? जैसे पार्टनरशिप में मैम अकाउंट है। हेलो मैम। हाँ जी। पार्टनरशिप में अकाउंट है अगर मैम, यस, तो अगर एक पार्टनर का केवाईसी डॉक्यूमेंट दिया जाएगा तो केवाईसी हो जाएगा एड्रेस प्रूफ पे सिंगल का? कम ऑन, यू नीड बोथ द मतलब बोथ के डॉक्यूमेंट्स चाहिए, दोनों का डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा मैम, बैंक वाले आजकल देखते हैं कि केवल आधार कार्ड मांगते हैं, वो तो ड्राइविंग लाइसेंस भी तो केवाईसी हो जाता है और वोटर आईडी कार्ड से भी तो होता है। आधार serves as an ID and address both, right? Driving license serves as an address only, PAN serves as an ID only, passport serves as both, so you need that. You have to understand कि कौन सा डॉक्यूमेंट आईडी है, कौन सा डॉक्यूमेंट एड्रेस है, कौन सा डॉक्यूमेंट दोनों है, कौन सा डॉक्यूमेंट रिलेशनशिप प्रूफ है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ओके मैम। राइट? ओके, कैन वी गो अहेड? Yes, ma'am. Okay. So, see, here you'll have to strike a fine balance between a banker and on a human ground also. Okay. इसलिए कहते हैं, see, the banker is a one. It's like, see, when I spent my 10 years in banking, my जो boss थे, मतलब I had lots of bosses because obviously हर 2 साल में transfer होता है. He always say to me that बैंकर इज अ इंडिविजुअल जिसकी सेंसेस बहुत एक्टिव होना चाहिए, ठीक है? ऑब्वियसली आईज, ईयर्स, सब कुछ, ठीक है? सर्कमस्टेंसेस, जिस एनवायरमेंट में काम कर रहा है, कुछ सस्पिशियस तो नहीं लग रहा है, बिकॉज बहुत सारी चीजें होती हैं। आई होप हम लोग केवाईसी और मनी लॉन्ड्रिंग पढ़ चुके हैं, सीडीडी, ईडीडी, एसडीडी, इन सब में बैंकर का एक्टिव होना बहुत जरूरी है, ठीक है? सो आई होप this is clear to you. Okay, आगे चलिए. Okay, next. So now we'll come to the documentation of the limited companies. Okay, क्या documentation चाहिए? So, certificate of incorporation and certificate of commencement. Certificate of incorporation is the one जब company incorporate होती है, या फिर, ठीक है, incorporate means registered होती है, और कमेंसमेंट मीन्स जब उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया. सो आई होप दिस इज क्लियर टू. सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट. आप बताइए मुझे कि किसमें चाहिए दोनों और किसमें एक से भी काम चलेगा, बिकॉज हम ऑलरेडी ये बात डिस्कस कर चुके हैं. द नेक्स्ट इज MOA and AOA. Memorandum of Association and Article of Association. I hope these words are not alien words to you. आप already पढ़ चुके होंगे. थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं that what is Memorandum of Association. See, बेटा, Memorandum of Association is the one that defines the objectives and the powers of the company. Okay? Basically, it is a charter or a constitution of the company. और बोर्ड को उस दायरे में फंक्शन करना है, ठीक है? और अगर आप वो दायरा क्रॉस कर देंगे, सो ऑब्वियसली द कंपनी इज नॉट लायबल टू यू, ठीक है? और जो पीपल डील कर रहे होते हैं उस कंपनी के साथ, दे आर एक्सपेक्टेड टू बी अवेयर अबाउट द प्रोविजंस ऑफ मेमोरेंडम. ओके, सो मेमोरेंडम इज बेसिकली दैट डिफाइंस, इट्स अ चार्टर, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी. और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है जो कि बताता है द इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी. ओके, सो बेसिकली दोनों में अंतर क्या हुआ? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज बेसिकली इन अ ब्रॉड, इट्स अ ब्रॉडर वन.
इट्स अ चार्टर, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशन, एक दायरा बता देता है कि जिसके अंदर कंपनी को ऑपरेट करना है और जो दूसरे लोग इससे डील करेंगे वो भी इसी दायरे में ऑपरेट करेंगे। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है बेसिकली उसके इंटरनल रूल्स रेगुलेशंस पर बेस्ड होता है, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक टू डिफरेंस, ओके। और एक चीज और है कि जब रजिस्टर होती है कंपनी, ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन उसे मिल जाता है, ठीक है। सो दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। और जब वो स्टार्ट करना ऑपरेशन चालू करती है दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट, ठीक है। समझ में आया? मैम प्लीज रिपीट अगेन। So the next is board resolution and certificate. Yes, tell me. Somebody is saying, ma'am, repeat. Which points, beta? मैम ये वो memorandum of association में. What is memorandum of association and article of association? Can anybody tell me the difference? Ma'am, in memorandum of association, everything is written like starting from like the share capital, how many members required and all. And but the article of association only consists of the internal management, so the rules and regulations which is made for internal management. So yes, I can say that memorandum of association is a broader concept as compared to article of association. So article of association generally consists of the rules and regulations of the company, right? An MOA contains the vision, mission. So basically MOA is a more wider concept than AOA, right? Can anybody tell me the difference between COI and COC? Yes, ma'am. Yes, Yatha, tell me COI, COC? Yes, ma'am. Ma'am, the certificate of incorporation is the certificate when the company is incorporated by the law, and the certificate of commencement is when the company started its business, or we can say its operations. Yes, see, by the name only, we are able to understand that incorporation is when it got registered. Suppose I got this company registered in 2015, right? And now after registration, in 2019, I have started with the operations of the particular company. Then I'll have to obtain COC. Yes, COI, COC is okay, right? Board resolution is basically maintaining the, it's basically the bylaws, the terms and conditions, who will be authorized signatory, what's the procedure, like profit sharing, laws, everything. So it's on the letterhead. The bank provide their own form and where the BR needs to be mentioned. And obviously certificate of registration of the firm. Is it clear, everyone? Right? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Of registration. See, board resolution क्या हो? Board resolution is basically जहाँ पर companies के rule लिखे हुए हैं, regulations लिखे हुए हैं, dissolve होगी तो क्या होगा, wind होगी तो क्या होगा. So that is basically about board of the resolution. और इसका एक फॉर्मेट होता है हर बैंक के पास और कंपनी को अपने लेटर हेड पर irrespective of MOP सबके सिग्नेचर्स करके देने होते हैं, ठीक है. और सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन तो आपको पता ही है कि जब कंपनी रजिस्टर होती है तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू किया जाता है व्हेन द कंपनी इज बॉर्न. और जब वो स्टार्ट करती है अपने ऑपरेशन दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट, और ये रजिस्ट्रार्ड ऑफिस पे अवेलेबल होता है, ठीक है. सो दैट इज देयर. सो दिस इज रिक्वायर्ड once again: certificate of incorporation, certificate of commencement, certificate of registration, board resolution, MOA and AO. Okay, I hope this is clear to you. Updated list of directors, obviously because directors जो होते हैं वो अपडेट होते रहते हैं, मतलब रिवाइज होते रहते हैं. कई बार हुआ ये रिटायर हो गए, करंटली क्या चल रहे हैं, वो लिस्ट क्या है उन डायरेक्टर्स की, ठीक है. उनका ऑथराइज सिग्नेटरीज क्या होंगे, किस तरह से उनका साइनिंग रहेगा, वो सब इज रिक्वायर्ड. सो नाउ व्हाट एल्स इज रिक्वायर्ड अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस? ये तो हमने कंपनी का देखा, MOA, AOA, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट, इनकॉर्पोरेशन, फिर हमने देखा सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, फिर हमने देखा अपडेटेड लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स. नाउ व्हाट इज दिस रिक्वायर्ड? The next is beta communication address proof of entity. Obviously बिजली का बिल, पानी का बिल, उसके एड्रेस को जो स्पेसिफाई करता हो. करंट लैंडलाइन,
and PAN. See, landline bills are valid. Even postpaid mobiles ka bill bhi, it's out from the KYC. And the PAN. PAN of the obviously signatories ka bhi PAN or PAN of the company, both. Latest passport size color photograph किसकी? Obviously, फॉर्म की नहीं लेंगे आप, फॉर्म की थोड़ी लेंगे फोटोग्राफ, ऑथराइज सिग्नेटरीज की, ठीक है? KYC ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरीज एंड अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पर उनके सिग्नेचर्स. KYC वही उनका एड्रेस प्रूफ, ID प्रूफ, पासपोर्ट ले लिया, आधार ले लिया, ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया, देन अदर थिंग्स आल्सो, ठीक है, विच आर द KYC और अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे उनके सिग्नेचर्स. So, before starting this task, हमने क्या पढ़ा? Both the things. Yatharth, you want to ask something better or you want to share something? Yes, ma'am. Do we have to do the types of the forms of board resolutions like ordinary resolution, special resolution, and unanimous? Such a deep is not required, Yatharth. Okay, only we have to know about what is board. What is BR and what consists of BR. That's okay, it. Okay. Right? Okay. So I hope till now any problem. As I've already told you that in KYC, even KYC documentation याद करने का सबसे अच्छा तरीका, you just make a sheet, right? By your own sheet. Okay. It's for your betterment. You write here individual, joint, partnership, private limited, public limited, and all that. Task. Here you will write color photograph, tick, 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 tick. Recent color like AOF, account opening form, tick, 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 tick. ID proof, address proof, relationship proof. I hope by this one paper, you just, by your understanding, you make this one paper, then you are able to understand all 3 videos which we have seen. Is it clear? Right? Okay, can we go ahead in task? Yes, ma'am. हमने पढ़ा पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड क्या है, फीचर्स पढ़े, डिफरेंसेस पढ़े, देन वी हैव टॉट अबाउट देयर व्हाट KYC. उसमें भी हमने देखिए क्या पढ़ा, एंटिटी और सिग्नेटरीज. सिग्नेटरीज की KYC हो जाए, एंटिटी की KYC हो जाए, और रीसेंट कलर फोटोग्राफ हो जाए, और अकाउंट ओपनिंग पर ऑथराइज सिग्नेटरीज के साइन हो जाए, board resolution हो जाए. Board resolution is nothing but it specifies the rules and regulations through which the company is abide by. Okay, so I hope this is clear to you. So now let me start with task. TASC, task. See, when I was in bank ना, जो task accounts का बड़ा pressure रहता है. Pressure means in the terms कि you're supposed to open the task accounts because इसमें जो money है वो stable है. See, the task account is basically, see, I live in this society, okay, and in this society there are a lot of, like, there are many floods, so we have this society account, okay, and again bylaws are there, treasurer hota hai, president hota hai, you know, of a society who takes care of the society, right? So then suppose if there are any Jai Club or Jaipur Club or Delhi Club, you know, clubs will go, so their account also, that all this comes under task account, okay, and task account gives a very stability in the terms of funds to the bank, because obviously the paisa, the money in this account is very, you know, fixed. It's not hot money like a current account. So task accounts, it's, as far as in business is concerned, it plays a very important role in any branch. Is it clear? Task, right? And now we'll see the KYC or documentation. Is it okay? Yes, can we go ahead? This is not a hot deposits. ये hot money नहीं होते, जैसे current account में मैंने बोला था ना, that isn't having a hot money. What do you mean by hot money? जल्दी से write in your chat box. क्या है hot money? बताइए. Yes, एकदम से पैसा आया और एकदम से निकल गया बेटा. That is hot. Okay. So now let us talk about
टास्क में क्या चाहिए? अकाउंट ओपनिंग फॉर्म एंड रीसेंट कलर फोटोग्राफ ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरीज। ट्रस्ट आपको पता है क्या होता है, ठीक है, ट्रस्टी होते हैं, प्राइवेट ट्रस्ट भी होता है, पब्लिक ट्रस्ट भी होता है, सोसाइटीज क्या होती हैं, यू ऑल नो दैट। सी अगर मैं आपको सोसाइटी का छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, सपोज मैं किसी अपार्टमेंट में रहती हूँ, वहां पर सपोज सोसाइटी है मंगलम की या फिर बिरला की कोई सोसाइटी है, तो ऑब्वियसली आपने देखा होगा वहां पर भी कोषाध्यक्ष होते हैं, प्रेसिडेंट्स होते हैं, ट्रेजरर होते हैं, उनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, सोसाइटी की मीटिंग्स होती हैं, मेंटेनेंस के लिए पैसा लिया जाता है जो सोसाइटी के अकाउंट में पार्क होता है, क्योंकि मेंटेनेंस भी देनी है। कैसे? सफाई वाला आता है उसकी भी देनी है, ओके। देन द लिफ्ट का मेंटेनेंस है। नाउडेज द सोसाइटीज आर वेरी बिग इन अ सेंस, द सोसाइटी के अंदर ही जिम है, ओके, देन सारी एमिनिटीज हैं, स्विमिंग पूल है, ठीक है, देन किड्स का एरिया है, इट रिक्वायर्स अ मेंटेनेंस। अंदर ही एक छोटा सा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, वॉचमैन है, डोमेस्टिक हेल्प है। सो ऑल दिस रिक्वायर्स इज ऑब्वियसली व्हाट, मनी। सो ये सारा मनी कलेक्ट करके सोसाइटी का ही एक अकाउंट खोल दिया जाता है, एंड इट इज लाइक दैट ओनली बिकॉज आई एम आल्सो लिविंग इन अ सोसाइटी। So every month we'll have to give the maintenance, we'll have to deposit the maintenance amount in that account only. So that is a society. Then the association clubs are there, lots and lots of clubs. There are private clubs, public clubs, लोग बाग clubs की membership लेते हैं, ठीक है, उसकी भी maintenance fees होती है, तो क्या KYC होगी हम वो देखेंगे, ठीक है। So अकाउंट ओपनिंग फॉर्म एंड रीसेंट कलर फोटोग्राफ ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरीज, ऑब्वियसली जो भी ऑथराइज सिग्नेटरीज हैं उन सबके सिग्नेचर्स, KYC of authorized signatories, that is again their ID proof, their address proof, okay beta. PAN card. PAN card is required, although it's ID, but PAN card is must. Okay, so now tell me, Aadhaar is ID or address? Come on, tell me. Passport is ID. Both. Come on, write in the chat box. I'm asking some questions. Aadhaar क्या है, passport क्या है? जल्दी फटाफट. I have a look. वीडियो चलता रहता है, मैं चैट्स पर हूँ. Okay. Your address? Tell me. Driving license is an ID or address? Tell me. So just write all this. We'll discuss afterwards. Okay. So PAN card. Copy of resolution of the management कमेटी। सी कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन होती है जहां पर सारे ऑथराइज सिग्नेटरीज के साइन होते हैं, किस तरह से फंक्शन करेगी, रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है, ऑल दैट, ओके। इफ यू वांट टू सी वंस अगेन, सो AOF एंड रीसेंट कलर फोटो ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरीज, सिग्नेचर्स, KYC ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरीज, पैन कार्ड, कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट कमेटी, ओके। So now the next, copy of RC. Obviously, their registration certificate is there. जब सोसाइटी रजिस्टर्ड होती है, ठीक है। कॉपी ऑफ बायलॉज। सी बायलॉज क्या होते हैं? बायलॉज इज रूल्स एंड रेगुलेशंस। कौन प्रेसिडेंट है, कौन ट्रेजरर है, कितनी मीटिंग्स हो गई, किस मीटिंग में क्या डिसाइड किया गया, कितने मेंबर्स हैं, ऑल दैट, कितना मेंटेनेंस है, ऑल दैट। ट्रस्ट की डीड। सी अब किस तरह से आएगा? ऑब्वियसली ट्रस्ट में बायलॉज नहीं लगते, ठीक है, ट्रस्ट में ट्रस्ट डीड लगती है ना। व्हाट इज ट्रस्ट डीड? ट्रस्ट डीड इज ऑब्वियसली जैसे पार्टनरशिप डीड है। सी ट्रस्ट भी ना बेटा, ट्रस्ट दे आर क्रिएटेड बाय द पर्संस व्हिच आर नोन एज ऑथर्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द पर्सन, जिनको हम बोलते हैं बेनिफिशरीज, ओके। और ट्रस्टीज अपॉइंट किए जाते हैं बाय द ऑथर ऑफ द ट्रस्ट फॉर कैरिंग आउट द एक्टिविटीज फॉर द बेनिफिट ऑफ बेनिफिशरीज। दो तरह के हैं, प्राइवेट और पब्लिक। प्राइवेट जो होते हैं, एज द नेम सजेस्ट, स्पेसिफिक पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्संस फैमिली के ऑपरेट करते हैं। पब्लिक जो होते हैं वो जैसे हम बोलते हैं ना, पब्लिक जैसे रिलीजियस ट्रस्ट है या फिर चैरिटेबल ट्रस्ट है, ठीक है, ये सब। सो ट्रस्ट डीड क्या है? सो बेसिकली बेटा, ट्रस्ट डीड एक डॉक्यूमेंट है दैट स्पेसिफाइज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रस्ट। नेम क्या है बेनिफिशरीज का, एक्टिविटीज क्या कैरी करेंगे, पावर्स क्या है ट्रस्ट की, अगर ट्रस्टी की डेथ हो जाएगी तो क्या होगा,
All these things are mentioned in a trust deed. जैसे पार्टनरशिप डीड थी, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे, वैसे ही ट्रस्ट डीड में किया जाता है. ऑब्जेक्टिव क्या है, नाम क्या है, बेनिफिशरीज क्या एक्टिविटीज कैरी ऑन करेंगे, पार क्या है, क्या किया जाएगा अगर ट्रस्टी की डेथ हो गई. सो ऑब्वियसली ये सब ट्रस्ट डीड में होता है. ठीक है. और ट्रस्टीज कुछ भी जो ट्रस्ट डीड में लिखा है उसके बियॉन्ड में जाकर नहीं कर सकते. ठीक है. सो दैट इज द थिंग. ओके. ऑब्वियसली जब भी मान लीजिए किसी ट्रस्टी की डेथ हो गई तो जो प्रोसीजर लिखा है ना ट्रस्ट डीड के अंदर, उसके अकॉर्डिंग ही बैंक को फॉलो करना पड़ेगा कि किस तरह से ऑपरेशन करना है उस अकाउंट का. एवरीथिंग इज मेंशन इन अ ट्रस्ट डीड. Now the list of management committees with their address duly signed by president. जो management committee members हैं उनके address जो हैं वो duly signed हो by the president, that is required. Okay, so copy of RC, bylaws, trust deed. Trust deed मैंने आपको elaborate किया कि क्या क्या होता है, और management committee के address जो members हैं उनके address duly signed by president. Okay. Now the next is about the HUF account. ये आपने सुना होगा, Hindu Undivided Family. Okay. So Hindu Undivided Family में, So I hope trust is okay. Like RC, bylaws, and trustee. So we are trustees and beneficiaries. So trust account is there. That includes some NGA. कई बार मंदिर की trust का account हो जाता है. And normal. So there are public trust, private trust. Okay. All sort of a trust has the basic copy of RC, trust deed, bylaws, address proof of all everyone, ID proof, and PAN card. That's it. Is it clear? Right? Okay. So now HUF. The person is calling as, who is the main in HUF, is known as? Tell me who मैम is the करता Karta and मैम करता. right? Karta and co-partners, right? Co-partner, yes. so now what is HUF? See, HUF की अगर हम बात करें, so obviously HUF जो है एक लीगल एंटिटी है, लाइक एनी कंपनी. यहाँ पर हम लोग बोलते हैं ना कि जो सक्सेशन और उसके ऊपर बेस्ड होती है. ठीक है. जहां पर हमने बात की कि एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली कैन डिपॉजिट देयर इनकम इन अ कॉमन कॉर्पस. ठीक है. सो HUF, सिंगल पर्सन अथॉरिटी वाइल पार्टिसिपेशन फ्रॉम द एंटायर फैमिली. जहां पर याद है हम लोग कभी आपने पढ़ा होगा कर्ता होते हैं एंड को पार्टनर्स होते हैं, और आजकल तो डॉटर्स आर आल्सो दे आर इक्वली लायबल, वो भी कर्ता बन सकती हैं. ओके. ऑब्वियसली टैक्स बेनिफिट मिलता है इस अकाउंट से, and corpus can be divided only on the agreement of every co-partner of the family. इस तरह से corpus divide होता है और ये agreement होता है family के साथ. So हर member अपनी income जमा कर सकता है. ठीक है. करता है, co-partners है, authority करता है, लेकिन agreement participation co-partners का भी है, और tax benefit भी मिलता. Tell me why HUF is formed. क्यों मनाते हैं HUF? मैम जिनका जॉइंट फैमिली रहती है तो मतलब ताकि से फैमिली ब्रेक ना हो जाए, तो HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली I'm के हिसाब telling से you, करें. अगर ये रीजन होगा ना, so I'll be very happy. यस मैम, ये तो नहीं होता. Just you मैम know, एक एक्स्ट्रा रिटर्न भरने के लिए बनाते हैं. yes, and even just for the tax benefit. मैम मेन ऑब्जेक्टिव तो टैक्स बेनिफिट ही है HUF का. होता है. नहीं जो you are sharing ना कि फैमिली ब्रेक ना हो. This was the motto when this account was formed, and I feel so good अगर motto रहता. यस मैम, लेकिन चेंज ही. But this is not a motto nowadays. HUF people are forming just to income tax budget. यस मैम, वो 2.5 लाख उसमें जमा करते हैं और फिर अपने दूसरे HUF में भी एक पूरी वो होती थी कि मतलब
मतलब एचयूएफ में भी आप अब तो खैर जो लेडीज हैं वो उनका भी अच्छा उन्होंने कर दिया, लेकिन पहले क्या होता था ना बड़ा बेटा ही करता बनता था। हाँ यस सर। बट नाउ इवन द डॉटर हैज अ फुल राइट टू बिकम अ करता यस सर। राइट ओके सो नाउ बट आई फील सो हैप्पी कि किसी ने इसका ओरिजिनल जो फॉर्म हुआ था वो बताया। किसने बताया था ये? आई मे हैव अ नेम? यथार्थ वेरी गुड really and this may because this is the motto by which it has been formed but irony is कि अब ये मोटो नहीं रहा, ऐसा लाइफ ही ऐसे लोग ही नहीं रहे। खैर आगे चलते हैं। मैम उस मोटो को पूरा करने के लिए मैम अकाउंट कैसे बनेगा, किसके नाम से बनेगा मेन अकाउंट? मैम यू आर ऑन म्यूट। It's karta, the main person who is there. Like co-partners may be minor, and then in minor we have to appoint a guardian. Okay, so that is in the old time, especially in Hindu families or in Jain families, they have their business. Okay, जो पिताजी बाप दादाओं का चला आ रहा है. Then they maintain this account where there's a joint family, like 4 भाई रहते हैं, भाइयों के आगे बच्चे हैं. Okay, so the original motto was this only. Right, but nowadays it is formed just for tax वाला benefit. What I feel, मतलब जितना मैंने practical देखा अपनी लाइफ में, might be I'm wrong. मैम जो मैम इंडिविजुअल अपने एचयूएफ का अकाउंट बनाता है वो खाली टैक्स बेनिफिट के लिए ही होता है Probably, but हाँ yes. See, I'm telling you, most probably yes. मैम एक्चुअली क्या होता है मैम, एचयूएफ में तो अगर फैमिली साथ भी ना रह रही हो लेकिन टैक्स बचाने के लिए वो भी वो अपना सबको इंक्लूड कर लेते हैं बस टैक्स बचाने के लिए। जरूरी थोड़ी आप एक जगह रहने चाहिए, सबका घर एक हो, ऐसा कुछ नहीं है। You just need ID address proof, that's it. मैम मैक्सिमम कितने होल्डर्स हो सकते हैं इसमें? Anyone has an idea? मैम वो तो lineal descendants में सिस्टर्स पे It depends. Is it a private और like हम लोग HUF की बात करते हैं, अभी कुछ amendments आए थे. This will let you know. Okay, this is covered in the further part of the video also. Just watch and then we'll मैम और कितना टैक्स बेनिफिट मिलता है इसमें? अंकल अभी all this पूरी अकाउंटिंग है मैम, इनकम टैक्स 1961 में जाना पड़ेगा उसके लिए। पता है अंकल, this I'm saying that this is यही दिक्कत हो जाती है when we are studying the banking. Okay, so it's entirely a paper. Like HUF का अकाउंटिंग बिल्कुल अलग रहता है, इनका इनफैक्ट टैक्स फाइलिंग अलग रहता है. Right, Ankan? Okay. So what we are focusing right now, it will come to our accounting lecture. ये आप accounts में जरूर पूछना, and you will get a very good explanation. Right? ठीक है. See, basically जो ये अमेंडमेंट आया है नाउ, तो गर्ल्स, पहले क्या होता था केवल सन्स ही बन सकते थे, लेकिन अब daughters are equally, they have a right to become a karta. तो basically who is karta? So जो eldest co-partners है ना फैमिली का, उसको कर्ता कह देते हैं. ठीक है. So basically only the karta of the family has the authority to carry on family business and operate the accounts of the HUF. लेकिन obviously KYC अगर हमें करनी है तो कर्ता की भी करनी है और co-partners की भी करनी है. So to open a bank account, HUF लेटर जो होगा वो साइन होगा co-partners के द्वारा भी और कर्ता के द्वारा. ओके, ठीक है. So now the next is what documentation is required for opening HUF account. Okay, so the latest passport size color photograph of karta or authorized signatories. Simple. ID and address proof of karta / authorized signatories, क्योंकि authorized signatories में co-partners भी तो आएंगे, उनका भी तो चाहिए ID, उनका भी चाहिए address. Okay. Correct landline, mobile and email ID ये चाहिए for an address proof. Okay. Permanent account number, HUF का अलग से होता है पैन. Authorized signatories का तो पैन चलेगा, लगेगा, लेकिन जो HUF जिस नाम से है उस HUF का अपना पैन नंबर भी होता है. HUF का लेटर जिसमें सब कुछ लिखा होता है कि
क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, अगर डेथ हो गई कर्ता की तो किस तरह से ऑपरेट होगा, ठीक है। और ऑब्वियसली ऑन द डेथ ऑफ द कर्ता जो नेक्स्ट एल्डेस्ट सन है उनको दे दिया जाता है, वो कर्ता बन जाते हैं, ठीक है। और कई बार ये भी है कि अगर एल्डेस्ट चाइल्ड जो है वो माइनर है, ठीक है, तो मदर जो होंगी ना चाइल्ड की वो मैनेज करती हैं सारी प्रॉपर्टी। सो एवरीथिंग इज रिटन, ठीक है। सो now the next is account opening check from the existing current account or a कर्ता savings account. So suppose HUF मेरा account है, मैं खोलती हूँ, पवनदीप कौर इसकी कर्ता है, तो पवनदीप कौर के सेविंग अकाउंट से कर्ता के सेविंग्स अकाउंट या फिर कोई अगर एग्जिस्टिंग कोई करंट अकाउंट चल रहा है तो आप ले सकते हैं चेक। So I hope with this HUF is clear. See beta, the RBI has already clarified that the banks can open a savings account for HUF. आप HUF का सेविंग भी खोल सकते हैं। See again, this is, I suppose now I should remove this video because this is more about a joint stock company, which is not at all mentioned in your module, right? So this is much more about, the banking sector. So can we now move to the discussion part? See, quickly, I'll just show you. Just a second. Purpose of profit. Administrators की बात की. See, so for quickly for joint stock companies, COI, right? It is issued by the registrar of joint stock company. Certificate of commencement, board resolution, MOA, and AOA. So again, this is not in your module. Like then also, if you want, and then I suppose it's okay. प्राइवेट की जो वेबसाइट्स होती है ना वो थोड़ा अच्छे से डिजाइन होती हैं, ऑल्दो पब्लिक इज आल्सो, बट या फिर ऐसा कर सकते हैं. See, now I want to tell you, as far as documents are concerned, don't see any book, any module. Just go to ICICI Bank, Axis Bank, or HDFC Bank. The most preferred one is ICICI Bank. Go to their website, like www.icicibank.com, suppose. Okay, then they have their tabs. Personal banking, you will get all the accounts, which we have discussed: individual, joint, nomination, minor, women, everything. Then they have corporate accounts, public limited, private limited. The KYCs are there, even NRI accounts, and everything you will find there. Right, so that's the best way to learn about KYC. Right, it's okay, and then you don't require any book, any reading material, anything. Is it clear? Right? Yeah, yes, ma'am. So just a second, I'll just show you yours lecture 9 also, right? And then tell me whether we have covered or not. Just a second. Yours, this Canvas module, okay? See, quickly. So earlier we have seen who the customer is, right? Okay, then this we have studied, isn't it? We have studied individuals. We have studied individuals. Yes. Illiterate. Yes. HUF, firms, local authorities, task, society, association, task, trust, task, companies, MOA, COC, COI, private limited, public limited. Personal, we have studied. We have studied about different type of personal accounts. Okay. Then we have studied about account of individual. We have studied about MOP. We have studied about this sort of an activity. Illiterate ka humne padha. We had studied about HUF, Hindu Undivided Family. We have studied about partnership, firm, right? We had studied about company, public limited, private limited, right? We have studied about all this. I hope you are able to identify. Task, we have started in the last
local authorities, that is related to, might be, see here, I just want to spend 1 minute. It is, for the panchayats, municipal corporations. Okay. So the banker should ensure that account of such bodies, they're open and conducted strictly as per the provisions for which they are formed. Like local panchayat is there and gram panchayat, and so precautions are there. So okay, their registration certificate is there, obviously. कि government के किस act में ये form हुई है, then the ID proof and address proof of authorized signatory, and obviously of the entity ID and address proof where it is there, right? And then what is difference in opening up of bank accounts of trust and societies? So can tell me the one major document which is a differentiated document and it's known as trust. के लिए main document कौन सा है? ट्रस्ट के लिए मेन डॉक्यूमेंट कौन सा है? विच इज द मेन डॉक्यूमेंट फॉर ओपनिंग अकाउंट ओपनिंग ऑफ ट्रस्ट? पैन। Copy of RC. It's trust deed, beta. Trust deed, right? And for society, it's bylaws, right? The bylaws. Okay. So these are the main documents. Rest is. So come on, switch on your cameras, everyone. फिर हम एक क्विज भी करेंगे.